you. Punitji? Yes, ma'am, you can start. Okay. Very good morning, dear all participants. So we welcome you all to the day 5th of the workshop on the theme Yoga and Mindfulness, Innovative Strategies and Practice, which is being organized on the occasion of 7th International Day of Yoga. So today we are very delightful that Dr. Satyendra Kumar Rajput, he is the HOD, Head of Department of Pharmaceutical Sciences, Haridwar, Gurukul Kangri University, Haridwar. So he is with us and he's our own Amitian, ex-Amitian. He is the, I can say he has contributed a lot in the growth and development of Amity Institute of Indian System of Medicines. And he was he was a pillar to this department. So I wholeheartedly welcome Dr. Rajput sir, and I request Dr. Vinay Sharma, Assistant Professor, Amity Institute of Indian System of Medicines, to to introduce the sir once again to all of us. Thank you. Over to you. Namaste. Good morning to all, everyone. So it's my immense pleasure and matter of privilege to introduce Professor Satyendra Kumar Rajput sir. Sir is a dynamic, enthusiastic professional since last 15 years of experience in the area of small molecule drug discovery, herbal research, particularly involved in the target identification and validation of novel therapeutic targets. Significantly contributed with the primary and secondary screening of new molecules and the therapeutics of liver disease, diabetes, and actively involved in the DVT research product, Ayush-related product, and industrial sponsor project since last 15 years. Sir, having a vast research experience in his credit with Edge index of 11, I-10 index of 15, and more than 60 publications. Sir has written many books, many book chapter, and presented more than 50 such publication in national and international forum. Sir had guided more than 26 research scholars in the PhD and the PG curriculum. Sir has organized more than 90 seminar, webinar, and in his career. Sir is a creative and innovative idea on the concept of increased transference and learning from the lower level to the higher level. Sir has a major thought area of the research of the sir is quantitative techniques, biostatic, drug discovery and development, pharmacology, toxicology, pharmacology screening, toxicology methods, research methodology, medical writing, and many more. Sir has PhD in pharmacology and toxicology, and sir is with a GATE ranking of 99.3 in 2003, and sir is also qualified UGC CSI NET. Sir is also, you can say that well in that yoga education. Sir is a qualified yoga instructor by the Yoga Certificate Board from Ministry of Ayush. Sir is also a certified the yoga for the protocol instructor by the Murari Desai National Institute of Yoga under Ministry of Ayush. Sir is has completed foundation course in yoga science for the wellness. Since last 15 years, sir has many professional experience in his career. Sir is the former director for Amity Institute of Indian System of Medicine, and I can say that sir is the man who brought me in this truth, and with the blessing I am doing the work. And sir is the presently headed head in Department of Pharmaceutical Science in Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar. Sir has a previous experience as associate professor, assistant professor, senior research fellow, and lecturer in a various reputed institutes throughout the India. Sir has headed that administrative position like a sports coordinator, like university proctor, research coordinator, scientific in charge, deputy superintendent of examination, chairman of GPAT committee, hostel representative, many more in the career. So, sir has worked on various work on research products, more than 7, funded by the various government and non-government organization. Sir has consulted in 3 projects. Sir has taken the there are 8 patents in sir credits, and sir awarded many professional bodies by received the Research Excellence Award from 19,
APJ Abdul Kalam Innovation Award in 2019, IPJ Professional Excellence Award in 2019, Lukman Award, Young Director and Innovator Award, Special Recognition Award by Honorable Shri Shri Padnayak, Honorable Minister of Finance, Government of India. So, sir has traveled many countries like France, USA, Dubai, Abu Dhabi, and sir has a active life member of many professional bodies, and sir has more than 57 publication which is published in many of that international and high impact journal which is enlisted in the Scopus, Web of Science, and many more. So I think words are very limited to speak about the sir, and without taking much time, I request sir kindly produce the session with your kind words, and definitely that student will benefit it with your innovative ideas, your dynamic leadership, and everything. Students, please go ahead. Sir, over to you, sir. Please produce. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vinamraji, for your nice words, introduction. Firstly, I am very thankful to Amity Fraternity Founder President W. Shilvamurthy sir, Rishi Das sir, Dr. Swati Madan, and Dr. Vinam, and also all the students whom I can see. It is always wonderful to associate, to interact with the colleagues and the students. Dear friends, I will discuss briefly because Indian system of medicine, this institute is to know more about yoga and have the scientific attitude. And since the theme is having the innovative tool strategies, so I will discuss that aspects as well. And I will try that if people may have some interaction or any various discussion we can take. I'll tell you a little about pharmacology and how you can make these strategies, develop new things. You all know about 8 limbs of yoga, that is Yama, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. Now, हमारे जो internal molecules, how they behave, how they work, and how we make the harmony, that is very important, and that we will discuss. Try to understand the signaling, what happens in our body, brain. So these are the things can easily understood. We tell you briefly about that, what exactly happens. You see the nerve terminal, and most of the things disease, you will understand that this is signal is coming like that, and signal receives here and propagate further. Most of the things, the action potential, propagate, and here we have the sodium, potassium, calcium channels, and here we have the receptors. Take the example of any disease which is related to our brain, because आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, साइको सोशल ड्रामा हम इसको बोलते हैं, साइको सोशल ड्रामा, ये ब्रेन के अंदर चल रहा है और चल रहा है एंजाइटी, फोबिया, ये सारी चीजें जो आपको आ रही हैं because of that. And here we have only few important factors which are playing the role. And what are they? They are the dopamine, they are the serotonin. These are just some molecules, noradrenaline, right? These plays adrenaline or epinephrine.
is other than that we have the GABA and glutamate, which make the lot of balance in the brain. Whatever meditation, anxiety you people are doing, these balance in these particular things plays important role. Just have a look here. We have the synaptic vesicle, and here calcium the calcium channel plays very important. You know that balance, how actually we attain the balance through the meditation. That is that you just have this particular picture, and you know through your meditation control you can maintain the balance in all these dopamine, noradrenaline, serotonin, right? And this balance is why it is important. Otherwise, excess of anything create issues. You know, disease like anxiety, or you know about the schizophrenia, psychosis, or hyperactivities, phobia. All these happens because of imbalance in these neurotransmitters. And you people are studying yoga, and this yoga therapy, which can have both the impact. They can stimulate as well, they can relax. And ultimately, aim is that we have to make our brain such that it does not overreact. It creates harmony, because ultimately by this mechanism, what we can do, we can have the balance, and we can enhance the parasympathetic activities, which ultimately leads to many outcomes. I'll tell you one example and you can understand well how innovation can play a major role. So here, not exactly yoga, what we have done the research, here the exercises we have taken, and this exercise actually creating the conditioning. And you know that whenever heart attack is there, what happens? Blood supply reduce. Now, we also आर्बिट्रेटली जानबूझकर हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम करते हैं। कभी जब हम ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स का करते हैं, या और भी एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं। पर्पज उसका क्या है कि हम जो हार्ट को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिसबैलेंस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई का। जब आप ये डिमांड एंड सप्लाई करते हो तो हार्ट की मसल्स धीरे धीरे क्या होती हैं, वो अपने आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ लाती है। देखा ये गया जब ये स्ट्रेंथ ला रही होती हैं तो वहाँ पे जीएस की 3 बीटा एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का लेवल कम हो। अब आप देखो इसके लिए व्हाट यू पीपल कैन डू एज ए रिसर्चर और फार्माकोलॉजिस्ट, वी ट्राई टू मेक इनहिबिट थ्रू द डिफरेंट मेथड। यहाँ तो हमने सिर्फ क्या लिया हुआ है, जो हम पानी पीते हैं कॉपर के वेसल्स में, इसकी बहुत मान्यता है, उसी को हमने यहाँ पे कैपर नैनो पार्टिकल के फॉर्म में लिया, इसको काम करके देखा और आपको इफेक्ट मिला। यहाँ पे दो चीजें बड़े आसानी से करी जाती हैं। एक रिसर्चर क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल बनाएगा 3GS के बीटा को इनहिबिट करने के लिए, और एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन देगा जिसमें आप आर्बिट्रेटली आर्टिफिशियली आप हार्ट को क्या करोगे, एक्टिवेट करोगे, ओवर एक्टिवेट करने के लिए कोशिश करोगे। तो उसमें क्या होगा, एक एनवायरनमेंट होगा जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी। तो आपने क्या करा, एक जैसे CO2 बाथ करके एक टर्म चलता है, और ये CO2 बाथ में क्या है, CO2 लेवल्स हाई होता है, जिसकी वजह से हार्ट को क्या करना है, ज्यादा काम करना पड़ता है। और ये रिपीटेडली अगर किया जाए तो हमारी हार्ट की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और आप मान के चलिए कि जो हार्ट अटैक आजकल आपने देखा कि कितने सारे ऐसे केसेस हुए जो बहुत ही यंग थे और उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो सिंगल हार्ट अटैक को टॉलरेट नहीं कर पाए, या उससे फाइट नहीं कर पाए, लड़ नहीं कर पाए। तीसरी चीज आती है, क्या यही चीजें हम योगा के थ्रू भी कर सकते हैं? क्या हम GSK 3 बीटा को योगा के माध्यम से भी इनहिबिट कर सकते हैं? तो हमें बहुत ज्यादा ड्रग डिस्कवरी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हमें फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारे बंद जो हम लोग करते हैं, बंद के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करते हैं, और जो मसल्स कार्डियक मसल्स हैं इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं।
अब ये देखो आप, इवन जीन लेवल पे बहुत सारा काम हो चुका है, जिसमें ये आइडेंटिफाइड है कि बहुत सारे जो जीन है जिनके अंदर जैसे ये ड्रोसोफिला में काम हुआ, और ये आइडेंटिफाई किया गया कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ऑक्टामामीन, ये डिसाइड करता है कि ये जो अडेप्टिव या रिस्पॉन्सिव लर्निंग होगी कि नहीं। अब कुछ लोग तो क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूल को बाहर से इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि एज ए फार्मास्यूटिकल्स का वर्क है। और दूसरा, हमारा क्या पर्पसेस होगा, योगा एंड मेडिटेशन के माध्यम से इस तरह की चीजों को हम किस तरह से बॉडी के अंदर ही इंड्यूस करते हैं। अब आप देखो, ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको, जैसे आप सपोज करो कोई भी हॉट चीज है, मान लो आपने जैसे एक कप पानी का गिलास पकड़ा हुआ है अपने हाथ। अब ये गिलास क्या होगा, आपको ट्रांसफर करना है अपने पेरेंट्स के पास, तो होगा क्या, उस टाइम कंडीशन पे हमें क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा पेन होता है उसको होल्ड करते हो, बट क्या हम उसको थ्रो कर देते हैं, क्या फेंक देते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम उसको इमीडिएटली फेंक देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नियर बाई प्लेस, जितने पास हम उसको रख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। यही कोशिश हमारी रहती है। जब हम ये करते हैं, तो हम, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है इटसेल्फ, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम लोग एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये पेन के परसीव हो रहा है, ओवर परसीव को कम करते हैं, रोकते हैं। अल्टीमेटली जो आज का जो वर्ड है, जिसमें बहुत सारा उथल पुथल है, उसको हम लोग किस तरह से मन को शांत करें, क्योंकि हम बाहर की दुनिया को इतने आसानी से नहीं बदल सकते हैं। बदल किसको सकते हैं, वो है हम खुद को, अपने आप को किस तरह से बदलें और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरह से चीजों को लें। तो हमने देखा एंडोर्फिन की वजह से उतना ज्यादा पेनफुल परसेप्शन नहीं रहता है। अल्टीमेटली ये चीजें, ज्यादातर चीजें परसेप्शन की ही होती है। अगर हम बात करें, ये रोलर कोस्टर है डिज्नीलैंड अमेरिका में, और इसमें जब इस तरह के आप एक्सपीरियंसेस करते हैं, अब देखो दो तरह, यहाँ पे दो ही चीजें हैं, या तो आप खुले दिल से इस इंसिडेंट, इस सिचुएशन को एंजॉय कर लें, ये हो सकता है, या फिर आप सोच लें कि पता नहीं क्या होगा, यू डोंट नो। जब आपको इस सिचुएशन पे कंट्रोल ही नहीं है, वेदर अब आप दुखी हो लो, खुश हो लो, कुछ भी कर लो, अगर एक बार इस पे बैठ गए तो थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, देन व्हाट वी नीड टू डू, एंजॉय द जर्नी। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जब लोगों ने, बिल्कुल एक सिचुएशन आ गई जहाँ पे गिव अप जैसी सिचुएशन हुई, वहां से लोगों ने रिकवर किया है। एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक इंसान है, एक बहुत ही ज्यादा परेशान, वो गंगा जी में कूदने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि ये जो वर्ड है वो हमारे लिए जीने के लिए है नहीं। इतना परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, नदी के किनारे जाता है और कोशिश करने लगता है, कूद जाता हूँ। और कूदते कूदते, पता ही आपका एक ह्यूमन नेचर है कि एक डर तो अंदर से रहता है, भले ही वो कूदने की कोशिश कर रहा हो, बट फिर क्या हो रहा है, वो उसको बचने की कोशिश भी कर रहा है, एक मन में रहता है कि क्या होगा, एक डर भी रहता है, बट वो अल्टीमेटली क्या चाह रहा है, चलो कूद जाते हैं। वहां पे एक ऋषि होते हैं पास में ही, वो कहते हैं कि यार मुझे लगता है ये सुसाइड कर लेगा। बोलते किसी से नहीं है, सिर्फ धीरे से उससे बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत समझदार लगते हो मुझे देखने में, तुम्हारे अंदर तो इतनी ऑरा है, ऑरा मीन्स तुम्हारे अंदर इतना तेज है, मुझे देख के ही आश्चर्यचकित हो रहा है। एक मिनट मेरी बात सुनोगे? तो कहता है कि देखो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इस दुनिया से, मैं जा रहा हूँ, और मैं बस बहुत हो गया, मैं इससे परेशान हो गया हूँ। तो कहता है एक बात तो सुन ले एक मिनट के लिए। बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं छोड़ा। तो ऋषि कहता है कि नहीं नहीं, तू बहुत समझदार है, मुझे देख के ही लगता है कि तू बहुत अच्छा इंसान है। तो थोड़ा सा अंदर से भाव उसको जागृत होता है, तो कोशिश कर ला, चलो जाते जाते सुन ही लेते हैं क्या होता है। वो कहता है कि अभी जो है एक जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके यहाँ पे एक ऐसा कुछ हुआ है, तो इमीडिएटली वो कह रहे थे कि एक आंख की जरूरत है, उसके लिए 5 लाख वो दे दे, और तुम तो मरने ही जा रहे हो,
क्यों ना हम एक, तुम्हारी जो आंख है एक अपनी दान कर दो, 5 लाख रुपए अपनी परिवार या किसी को दे दो, और तुम्हें तो मरना ही है, थोड़ी देर बाद मर जाना, 5 मिनट बाद क्या फर्क पड़ता है। और तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो, तुम्हें देख के मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर तेज भी है। वो सुनता है कि अच्छा ऐसा है, 5 लाख, चलो मम्मी के काम आ जाएंगे, ऐसा सोचने लगता है वो। ऋषि फिर उसको और बोलते हैं कि यार 5 लाख तो मैंने ऐसे ही बता दिए, अगर हम नेगोशिएशन करेंगे तो मुझे लगता है 10 लाख भी मिल सकता है। तो फिर अच्छा 10 लाख जाता है, निकल आता है धीरे से, चलो सुसाइड करना है तो थोड़ी देर बाद देख लेंगे क्या है, चाहे आंखों के साथ सुसाइड करो, चाहे आंखें बंद करके करो, क्या फर्क पड़ता है, कूदना तो नदी में ही है। धीरे धीरे चलता है, जैसे ही ऋषि उसको वहां उधर आसपास लेके जाता है, बीच बीच में बातें करता है कि यार ये तो मैं सिर्फ एक आंख की बात कर रहा था 10 लाख की, अगर दोनों आंख आंख देगा तुझे तो 20 लाख मिल जाएगा। यार अच्छा 20 लाख मिल जाएगा, और बताता हूँ, अगर हमारा नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहा तो तुम्हें लीवर, किडनी और हार्ट, इसके तो 10-10 लाख और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वो सोचने लगता है कि मेरा जो खुद का शरीर करोड़ों का है और मैं उसमें व्यर्थ नदी में कूद के खत्म कर दूंगा। ऋषि को कहता है भाई ऋषि आप अपनी तपस्या करो, मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं नहीं देने वाला आग नाग, ये कुछ नहीं देने वाला, मेरा जीवन इतना अमूल्य है, मुझे पता नहीं था। तो उसको इसका आभास होता है, ज्ञान होता है, और वो जो है अपना वापस आता है, अपने माँ बाप की सेवा में और सभी में लग जाता है, देश का नाम रोशन करने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली सिनेरियो क्या है वो समझने की जरूरत है, और हम कहाँ पे किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मन हमारा शांत रहे। ऐसा नहीं है कि हम काम ना करें, बट हमारा जो है समत्वम योग उच्चते, समभाव रहे, हार्मोनी रहे, चाहे बहुत ज्यादा खुशी की बात हो, ओवर एक्साइटमेंट ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर एक्साइटमेंट जब आप शो करते हो किसी रिजल्ट को देख के, किसी सिचुएशन को देख के, तो होता है क्या है कि आप उस टाइम पे तो अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे होते हो, बट सराउंडिंग में इम्पैक्ट सिमिलर नहीं रहता। सिमिलरली बात आती है जब आप दुख में होते हो, तो आप तो दुखी होते ही हो, सराउंडिंग में भी उस चीज की इम्पैक्ट रहता है। तो क्यों ना हम अपने पे नियंत्रण रखें, अपने अपने जो हमारे जो मन है उसको शांत रखें, आचार विचार जो हमारा व्यवहार है उसमें एक संभाव लाने की कोशिश करें। ये क्रियाकलाप अगर किया जाए तो निश्चित तौर पे ये एनवायरनमेंट बदलता है। ये आप लोगों का ही पिक्चर है कहीं ना कहीं, और आपने देखा कि सिर्फ एक चीज ने बहुत सारा बदलाव दिया है कोरोना में लड़ने के लिए, वो नमस्कार है। तो आप बिलीव करिए कि हमारे पास कितनी चीजें हैं, अगर हम उसको समझने लगे धीरे धीरे तो उसके अंदर इतना भरा पड़ा है ज्ञान कि ये विश्व को एकदम से शांत बना सकता है, जो उथल पुथल की सिचुएशन है उससे दूर कर सकता है, और बहुत सारी जो भविष्य में आने वाली बीमारियां भी हैं उनसे भी हम लड़ सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, वर्क करना है अपने खुद के ऊपर। अब आप देखिए, हमें कई बार क्या होता है कि लोगों से जेलस, ईर्ष्या, इस तरह की भावना रहती है, उसको ये मिला, उसको ये मिला, मुझे ये नहीं, उसको ये नहीं। अब ये देखो, ये शमशान घाट का एक दृश्य है गुजरात में, बड़े अच्छे से उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। जब भी कोई यहाँ से गुजरता है, पास से गुजरता है, उसको रियलाइज हो जाता है कि क्या है, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, यहीं की यहीं रहना है, सिर्फ रह क्या जाएगा साथ, वो आपके व्यवहार हैं जो आपने किया है, जो आपके उपकार हैं जो आपने समाज के लिए किए हैं, अपने देश के लिए, वो चीजें रह जानी है साथ। तो क्या ना हम चीजों को अच्छा करें। अब ये अच्छा करने के लिए तो बहुत लोग बोल देंगे अच्छा करो, और सबको पता है, लेकिन हम चेंज कैसे लाएं अपने व्यवहार। चेंज लाने का तरीका है खुद को प्यार करना, खुद को देखना। डोपामिन हार्मोन, लव ऑफ हार्मोन बोलते हैं, वो सेक्रेट करेगा अपने आप जैसे जैसे बढ़ जाएगी। दो चीजें हैं, या तो डोपामिन सेक्रेशन बढ़ जाए, या फिर आप आरपी आर्टिफिशियल ऐसा एनवायरनमेंट कर दो कि डोपामिन बढ़ना शुरू हो। होता है क्या है, आपने देखा होगा जब कोई बहुत अच्छा हस्त पुष्ट और एक्सरसाइज करता है तो उसके एकदम शोल्डर, एकदम कंधे हैं बिल्कुल सही, चलता हाव भाव उसके बड़े अच्छे लगते हैं। और जब वही चीज कम हो जाती है
तो आप कंधे झुक जाते हैं और एकदम से परेशान सा वो दिखाई देता है। तो हुआ क्या, आपकी जो बॉडी जो जो अंदर चेंजेस आए वो रिफ्लेक्ट कहाँ हुए, बॉडी पे। अब रिवर्स करने की कोशिश करते हैं कि अब हम हाव भाव बदलेंगे। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फीवर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी हो, डजेंट मैटर। जो हमें कंट्रोल है मसल्स पे है, तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेटली उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो हमारी फेस की मसल्स हैं, क्या हम उनको आर्टिफिशियली स्माइल नहीं करा सकते हैं? अगर हम आर्टिफिशियली देख के, अपने खुद को देख के अगर स्माइल कराने की कोशिश करें, आप एक मिरर रखिए सामने और खुद ही से स्माइल करिए। सक्षम तो वैसे ही स्माइल करता रहता है, मुझे देखता रहता है। तो ऐसे ही हम क्या सीखना है, क्या है, खुद से ही सीखना है। कोई भी सिचुएशन हो, डजेंट मैटर। भगवान श्री कृष्ण को याद करिए, उनको श्राप दिया जा रहा था कि तुम्हारा वंश नष्ट होगा, वो स्माइल जो होगा होगा। एक्सेप्ट दी चैलेंज, एक्सेप्ट दी सिचुएशन, हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो ये की प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस अगर हम धीरे धीरे डालेंगे तो आपके अंदर जो बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। हमें क्या करना है, कोशिश करना है, हमें बी लाइक ए किंग। सपोज हम कोशिश करते हैं। अब आप देखो, अगर आप योगा में एडमिशन लेते हो तो एक एक योगी जैसा आपका व्यवहार होना चाहिए। आपके अंदर जेलस, आपके अंदर घृणा, ये भावना नहीं आनी चाहिए। हालांकि अब योगा में भी आपका कुछ कोर्स हुआ है, नहीं हुआ है, या आपने कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हमें क्या करना है, एक एक व्यवहार दिखाने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट होता है, उसके व्यवहार में चेंज आता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है, उसका जस्ट एडमिशन ही एमबीबीएस में हुआ है, आपको देखोगे उसमें 360 डिग्री चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे व्यवहार में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि अभी आप डॉक्टर नहीं बने हो, अभी आप कोई कलेक्टर नहीं बने हो, अभी आप योगी नहीं बने हो। आपने क्या करा है, वो आर्टिफिशियली फेक करना शुरू कर दिया है। और जब आप ये चीजें फेक करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे क्या है, आपके अंदर उस तरह का एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है। क्योंकि दो तरीके से बॉडी वर्क करती है। एक, इंटरनली जो बायोकेमिकल हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं, और जो बाहर आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे इंटरनल जो मिली हुए मॉलिक्यूल्स हैं उस एनवायरनमेंट को भी धीरे धीरे चेंज। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को, अपने आप को खुश करके देखना है, अपने शांत करके देखना है। और इसको आप चैलेंज लीजिए। आप किसी एक जगह पे बैठ के और लोगों से जब इंटरेक्ट कर रहे हो, नोट करिए कि कब मैं गुस्सा हुआ था, कब मैं खुश था। जब मेरा फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था तब लोगों का किस तरह से रिएक्शन था। जब मैं एकदम इरिटेट हो रहा था तो सामने वाले का फेस एक्सप्रेशन क्या था। अगर इस चीजों को आप एनालाइज करोगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। तो योग जो है, योग साइंस है, और ये इतना बड़ा साइंस है जिसने एक नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसने लोग जो है उस सिचुएशन से निकल के आए। एक एग्जाम्पल आपका जो है, वो 13 फुटबॉलर बच्चे जो एक फंस जाते हैं गुफा में, जहाँ के अंदर कहाँ पे है, वहां पे क्या है, पानी है, निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, कैसे निकलेंगे। इवन जब नेवी पर्सन उनको निकालने के लिए वहां तक जाता है, सोचो जर्नी में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उस मन स्थिति को समझ लीजिए कि जब वो वहां पे बैठा हुआ था, जब वहां पे 13 फुटबॉलर बच्चे और उनका कोच वहां पे उपलब्ध था, उन्होंने 13 दिन तक कैसे कैसे सरवाइव किया। वो उनके पास क्या शक्ति थी, वो उनके पास शक्ति थी मेडिटेशन की, योग की। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, किस तरह से हम लोग इंटरनाइज करें अपने आप को, किस तरह से अपनी एनर्जी को रिजर्व करें। रिएक्शन तो हम बहुत देते हैं, ओवर रिएक्शन देते हैं, वो प्रॉब्लम करता है। कछुआ क्यों इतने साल जीता है, सीवी भारद्वाज? कछुए की उम्र कितनी होती है, अच्छा बताएं थोड़ा। टीवी अनम्यूट करें। Shivi, please unmute. कछुए की उम्र कितनी होती है, 10 साल, 20 Saksham, साल, 30 Saksham, साल? you just tell. टॉर्टवाइज, हाँ, सक्षम, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल? Participant, may also answer. Participant attendee, in the chat box you can write. I don't know, maybe Be interactive. 360. 360 years
I don't know, maybe. अब देखो कोई बात नहीं, हमसे तो ज्यादा है उनकी, 100+ तो है ही, इतना तो मान ही लीजिए। क्यों है इतनी ज्यादा? कभी आपने देखा कछुए को स्ट्रेस में? बाहर से कोई पत्थर मारने के लिए आ जाता है, अब क्या करता है? अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, अपनी लिम्स को वो इंटरनलाइज कर लेता है, अंदर खींच लेता है, और उसके बाद कहता है कि यार जो तुम्हें करना है कर लो, आई विल नॉट डू। सिमिलरली आपने देखे होंगे जो फ्रॉग होते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं, 6-6 महीने बिना खाए वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, बने रहते हैं। तो इसमें ये है कि हम लोग ओवर रिएक्ट चीजों को ना करें, इंटरनलाइज करें, कंजर्व करें। अब यहाँ पे जो देखा हमने, एक कहते हैं ना कि बहुत बार, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि लोगों को डर किससे लगता है, चैट बॉक्स में डालें किसको किससे डर लगता है, देन वी डिस्कस। चैट बॉक्स में डालें, हम डर दूर करते हैं आपका। Sir, one response from Diksha Chauhan. My sister is afraid of dark. Okay. और Stage fear. Marine Stage fear, Simon very is good. pushing it. Stage Stage fear. fear is very common. That Stage most of fear the is time very we have a knowledge, but most of the time we are not with to face the audience. Good question, sir. There are two. Participants, please just mention the answer in the chat box. जी। अब आप देखो योग के थ्रू कितने आसानी से आप चीजों को दूर कर सकते हो। जिसको जिस चीज से फियर है उसको रिमूव करने का क्या तरीका है, किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो फियर को। दो ही सिंपल सी इमोशंस के साथ इसमें है, ये दो इमोशंस, अपोजिट इमोशंस साथ साथ नहीं रहते हैं, ये मान के चलिए। तो अपोजिट इमोशंस डू नॉट रिमेन टुगेदर। अगर आप बहुत खुश हैं दुखी नहीं हो सकते, अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो शांत नहीं हो सकते। खुशी का फायदा लेते हुए हमें क्या करना है, अपने मन को शांति करना है। शांत करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा टूल है। आप मेडिटेशन करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, और किसी योग मुद्रा में, किसी आसना में, आसन में बैठ जाएंगे बड़े शांति से। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो आपका फियर है, जैसे डार्कनेस बताया, या आपका किसी एनिमल से या किसी भी चीज से फियर है, उसका हम लो मैग्नीट्यूड में, लो स्ट्रेसेस इंड्यूस करेंगे। जैसे किसी को लेजर से ही डर लगता हो ना, छिपकली से किसी को डर लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता है, कुछ नहीं करे, एक टुकड़े पे कॉकरोच लेके अपने पॉकेट में रखना है। फिर क्या लिखना है हमने, कॉकरोच लिखना है और अपने पॉकेट में रखना है। आप एक हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करिए, जेब में कॉकरोच है, ठीक है, मन में क्या है, कॉकरोच है, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे जेब में तो कागज ही है। तो धीरे धीरे क्या है, हमें क्या करना है, ब्रेन जो है हमारा, तो आप इजिली टूल बना सकते हो। तरीके उसके क्या है, ब्रेन जो है वर्चुअल और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता। तो क्या ब्रेन जो प्रोसेस करता है वर्चुअल और रियलिटी में, जैसे आप देखो सपने देखते हो रात में, और आप देखो हार्ट रेट कुछ ऐसा सपना देख लिया जिसमें आप दौड़ रहे हो और टाइगर पीछे दौड़ा रहा है आपको किसी जंगल में, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं, ठीक है। ये सारी सिचुएशन, दो इट इज वर्चुअल, रियलिटी नहीं है, सपने में सारी चीजें, बट बॉडी आपकी ओरिजिनली रिएक्ट कर रही है। सारी रिएक्शंस जो आ रही है, हार्ट रेट हो, रेस्पिरेशन हो, ये सब क्या आ रहा है, ये आ रहा है ओरिजिनली। और इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, 1 सेकंड लगता है ये सारे फियर को, हार्ट रेट और सब को दूर करने के लिए। वो ये है कि आप जाग जाओ।
क्या है, आप 2 मिनट के लिए जाग जाओ। जैसे ही आप जागोगे आपको पता चल जाएगा रियलिटी तो ये थी, वो तो रियलिटी नहीं थी। तो हमने क्या करना है कि जो स्ट्रेसर है आपको, वो धीरे धीरे आपको स्ट्रेसर को बढ़ाते जाना है। हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं, या तो बड़े से छोटा कर लें, हम लोग जो फार्माकोलॉजी में यही करते हैं। अगर किसी थेरेपी में मेडिसिन को रिमूव करना हो धीरे धीरे, तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उसकी डोज कम करते चले जाते हैं। या कोई आपको मेडिसिन ऐसा है जिसकी डोज हमें बढ़ानी है, तो इमीडिएटली ना बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो स्ट्रेसर है, जो आपके अंदर फियर लाता है, फोबिया लाता है, उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको या तो हम बढ़ा देते हैं, एकदम बढ़ा के देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पिक्चर देखी होगी आपने। आपने क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब एक पियर फैक्टर, पियर बंदा कोई वो आता है, सीरियल है कुछ, तो उसमें अगर उसको देखो, अगर उसने जिसने उस प्रोसेस को एक बार जी लिया है, तो क्या लगता है आपको, उससे कभी लिजर्ड और इन चीजों से डर लगेगा नहीं? तो या तो आप हाई मैग्नीट्यूड में उस सिचुएशन से गुजरे, उसमें एक डर रहता है कि वो इतना ज्यादा एंजाइटी क्रिएट कर सकता है, पैनिक कर सकता है, कि वहां पे फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो आपने देखे होंगे इस तरह के जो भी हैं वो अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट किए जाते हैं, अवेलेबल आप एक्सपर्ट किए जाते हैं, सारी चीजें हैं। तो हमने क्या करना है, लिजर्ट को क्या करना है, सिर्फ लिख के जेब में डालना है 1 हफ्ते तक। आपको जो मन में एक डर बैठा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी एक लेजर प्लास्टिक की, ले लीजिए। आजकल बच्चे, आजकल बहुत सारे, या तो आप देखो लैब्स में, या आपके खिलौने के माध्यम से ऐसे मिलते हैं। आप उसको एक ले लीजिए, प्लास्टिक का, ये बैग में रखिए, आप अपने पास भी ना रखिए, बैग में रखिए, दूर रखिए थोड़ा सा। और आप देखोगे धीरे धीरे उससे जैसे एक घृणा सी होती है वो कम होने लगे, क्योंकि वो भी एक एनिमल ही है, और वो भी बहुत सारे संघर्ष से इस जीवन में आया है। हम लोग थोड़े ज्यादा संघर्ष लेके आए हैं, उनका थोड़ा कम संघर्ष है, बट उन्होंने भी संघर्ष लेके ही आए। एक सिचुएशन ये है। नेक्स्ट आएगा कि आपका एक्चुअल इंटरेक्शन हो, बाई डिस्टेंस हो। मेन टाइम जो आपको अच्छा लगता है, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये आप करते रहिए। और लास्टली यू इंट्रोड्यूस जस्ट द ओरिजिनल वन, चाहे वो लिजर्ड हो, स्पाइडर हो, कुछ भी हो, उसको आप इंट्रोड्यूस करिए। और आपको देखो, आपको लगेगा कि आपको जो पहले रिएक्शन था और आप रिएक्शन क्या। आजकल तो वर्चुअल बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप जिस चीज से डर रहे हो उसके फियर को कम कर सकते हो। बहुत सारे लोग रोलर कोस्टर एक्चुअल में नहीं बैठ पाते हैं, बट आजकल जो 3D 4D 7D में जो आते हैं, उसमें जो है बड़े आसानी से बैठ जाते हैं। और वही अगर एक बार रिस्पॉन्स रेगुलरली करते करते हम लोग धीरे धीरे उस फियर को रिमूव कर देते हैं। तो हमें यही करना है, जो हमारा फेस है, ऑलवेज क्या करना है, चाहे आप इस तरह का फेस कर लीजिए, चाहे इस तरह का कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। मसल्स तो इतनी ही है, उतनी मसल्स को काम करना पड़ेगा, ये इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, एक चीज करने के लिए। चॉइस इज योर्स, आइदर दिस फेस और आइदर दैट। या तो डरा हुआ फेस रखना है, या फिर खुशी वाला फेस रखना है। अगर ये रखेंगे तो आपके सराउंडिंग में, नियर बाई में बहुत अच्छा और पॉजिटिव बदलाव आ ही जाएगा। एक अगर भावना ये जो डेवलप कर ली जाए, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल गोल्स की बात करता है, बहुत सारे उन्होंने 17 गोल्स दे रखे हैं। अगर आप सिर्फ एक ही, हमारा जो जो एंशियंट विजडम है वो क्या कहता है, अयम निजा परवेत करना लघु चेत साम उदार चरता नाम तू दोस्तों। अगर हम इस धरा को, इस विश्व को अपना परिवार मान ले, तो बताओ कहाँ पे घृणा रहने वाली है, कहाँ पे हम ईर्ष्या करने वाले हैं। ये अपने आप, ये जो इतना सारा उथल पुथल वर्ल्ड में जो है, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। ये सिर्फ नैरो माइंडेडनेस की निशानी है कि ये मेरा, ये तेरा। हमारे यहाँ जो मानना है, जो जहाँ हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, जैसे हमारे ऋषि ऑफिस में, अपने घर में इनमम मम लिखा हुआ है, ये मेरा नहीं है। उन्होंने पहले ही लगा दिया एक बोर्ड, ये मेरा नहीं है। जो हमने अभी बताया था कि लिजर्ड से डर कैसे करना है, हमने लिख दिया लिजर्ड एक कागज में, जेब में डाल दिया, ठीक है, डर खत्म हो गया। आपने लिख दिया ये चीज मेरी नहीं है,
मन में क्या जो अटैचमेंट हो रहा है, ओवर अटैचमेंट हो रहा है, या जो ओवर अटैचमेंट करने वाले मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जब ये अटैचमेंट वाले मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे तो हमारे अंदर जो उतनी भावना है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं, वो कम रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा उद्देश्य होगा वो किसके लिए होगा, पूरी पृथ्वी के लिए होगा। अभी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी G7 में बात रखी, उन्होंने क्या रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ। कोरोना ने तो सिखा दिया कि वन हेल्थ ही है, और आपके जो पॉल्यूशन या ये ग्लोबल वार्मिंग में देखो, उन्होंने सिखा दिया कि अर्थ एक ही है, चाहे उसको दोहन करने वाला या कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, कोई भी हो, अगर वो कुछ भी करेगा अल्टीमेटली इम्पैक्ट इस पृथ्वी पे रहने वाले हर मनुष्य पे होगा, नहीं होगा, सक्षम होगा ये नहीं होगा, ये इम्पैक्ट क्या होगा, आने ही वाला है। अगर मान लो कोरोना, आपने क्या करा, हमने इंडिया में सब ठीक, कोरोना हमारे यहाँ था ही नहीं, वी वर वेरी हैप्पी, चलो ये अच्छा यहाँ तो नहीं हुआ वहां हुआ, चलो उन्होंने कंट्रोल किया नहीं किया डजेंट मैटर, बट हमारे अंदर क्या इतना डर था, जब तक कि ये सेकेंड वेव नहीं आई। सेकेंड वेव ने तो हमारे मन को हिला रखा है, वो हमारे टूल्स टेक्निक्स और हमारी जो लर्निंग है, जिस वजह से हमने अभी भी मना स्थिति किसी की ऐसे डिस्टर्ब नहीं हुई है, जैसे विदेशों में देखा होगा, ब्राजील या और इटली जैसे कंट्री लो, जब ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इस तरह की भावना रखें, और रखना ही पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा जब हमें ये भावना डेवलप ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज इस संसार को सरवाइव कराना या अच्छे से जो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कि हम जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका इस तरह से यूज करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली उनकी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। तो ये भावना नहीं है तो नहीं आएगा, नहीं तो क्या है, अभी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लोग जा रहे हैं, और बिना किसी उसके की एम क्या अचीव क्या अचीव करने वाले हैं? हाँ, भारत से सीखिए, दुर्योधन की फैमिली, रामायण से सीखे, रावण की फैमिली, क्या अचीव किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। अचीव क्या होता है इससे? इसीलिए अल्टीमेटली हमने अपने ब्रेन को चीजों को सिखाना है। ज्ञान योग यही कहता है कि हम किस तरह से ब्रेन को ऐसी चीजें सिखाएं जो एनवायरनमेंट के लिए, जो सराउंडिंग के लिए, जो समाज के लिए अच्छी, और इसको समझना और करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हमारे जो खुद इंडिविजुअल, आप अपने आप को समझो, आप अपने नेचर को समझो। आयुर्वेद में डॉक्टर विनम शर्मा और सभी लोगों को इसके बारे में अच्छा सा ज्ञान उपलब्ध है कि हमारी बॉडी किसके लिए बनी है, किस तरह के खाने के लिए बनी है, किस तरह के पहनाव के लिए बनी है। आयुर्वेद तो हमारे पास इतना रिच इंफॉर्मेशन देता है, ये जीवन जीने की कला बताता है, और आप अगर ये फॉलो करना ही शुरू हो जाएं तो ये बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है। और जब आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, तो सराउंडिंग अपने आप ही खुश हो जाती है। और आपको खुश रखने के तरीके हैं, खान पान, आचार विचार, इसके साथ साथ आप अपनी मन स्थिति को कैसे ट्रेन करते हो। डिप्रेशन, एंजाइटी, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई थेरापिस्ट नहीं होगा वर्ल्ड में, कि उन्होंने किस तरह से डिप्रेशन को दूर किया जाए, किस तरह से एंजाइटी को दूर दूर किया जाए। उन्होंने कितने सारे ज्ञान दिए हैं, और ये ज्ञान हमारा इतना वर्षों पुराना है, और हम लोग पढ़ते किसको हैं, सैम सिगमॉयड और ये फ्रूड जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इनकी थ्योरियों को हम लोग कोट करते रहते हैं। अब आप इससे सीखे, उसमें क्या है, जब भी कभी ऐसा मन में विचार आए और कहीं हम फंस जाएं, अटक जाएं, लगता है कि ये बहुत ही बेकार इंसान है, कुछ नहीं, आप बैठ के उसकी बुराइयां करिए, उसके अंदर कौन कौन सी बुराई है उनको कैटेगराइज करिए, अकेले में बैठिए और लिस्ट बना लीजिए कि मान लो किसी की, सक्षम की ले लेते हैं, सक्षम तो वैसे मुस्कुराता रहता है, तो मैंने क्या, सक्षम के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं क्या करूंगा, सक्षम का एक फोटो ले लूंगा और बुराइयां लिखना शुरू कर दूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा यार, बुराइयां तो खत्म हो गई, अच्छाइयां भी होंगी, 10 नहीं होंगी, एक तो होगी, एक अच्छाई लिखूंगा, तब मैं उसमें कंपेयर करने के करूंगा कि बुराई में मैग्नीट्यूड ज्यादा है या अच्छाई में मैग्नीट्यूड ज्यादा है। कई बार क्या है,
100 बुराइयां हों और एक अच्छाई, वो प्रीडोमिनेट कर जाती है। क्योंकि जो हम हमारे जो बच्चों से क्या सीखते हैं, हम लोग त्याग ही सीखते हैं। वो जो है भले ही आपका क्या है, उनका देने का नेचर है। अब देखो त्याग आप कैसे सीखोगे? तो त्याग की भावना हम लोग वनस्पति से और हमारे जो है आसपास की चीजों से, रिसोर्सेज से देखते हैं। ऋग्वेद में हम लोग पूजा करते हैं सूर्य से लेके, पृथ्वी से लेके, हर एक नेचुरल चीजों की, अग्नि की। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि देना मतलब त्याग की भावना कैसे रहे। और सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ही यही है। और ये चीजें हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों साल पहले कर दी हैं कि धरा का जो आप दोहन कर रहे हैं या रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? वो आप करेंगे विथ सैक्रिफाइस, त्याग की भावना से। ये त्याग की भावना हमारे अंदर ही होनी चाहिए। और इसको अंदर कर भावना डेवलप हो, इसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमें बैलेंस चाहिए, किसका? डोपामिन, सेरोटोनिन और एड्रेनलिन। क्योंकि हमें खुश भी रहना है, डोपामिन भी चाहिए हमें। और हमें जो है बिल्कुल बॉडी डाउन नहीं जाना, एड्रेनलिन भी चाहिए। और जो हमारी अवेकनिंग और ये जो शांत रहे, सेरोटोनिन, इन सब का जो है सामंजस्य, अगर ये सामंजस्य है तो आप बड़े अच्छे से चीजों को कर पाते हैं, देख पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं, और आप एक दूसरे को जान पाते हैं। अब 3 बी बताता हूँ, ये बहुत अच्छी आपको पिक्चर दिख रही होगी। बी, एक और बी है। ये बी आपका बॉडी है, शरीर है। ये दर्शाता है आपके जो सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम आप करते हैं अपने बॉडी को पुष्ट पुष्ट सब रखने के लिए, ठीक रखने के लिए। दूसरा भी है ब्रेन, जो सर्वोच्च है, जिसको जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते। अल्टीमेटली सबकी जड़ यही है। इस पे अगर हमने फोकस नहीं किया तो बाकी जो जो बी हैं ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरा बी है ब्रेथ। ये दोनों दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रेथ गायब हुआ तो पता है आपको क्या होगा। तो ब्रेथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिसपे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। ब्रेथ, कैसे सांस ले रहे हो, इसमें बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। ऋषियों मुनियों ने इतना काम करके हमें दे दिया है, हमें सिर्फ फॉलो ही करना है। और लोग एविडेंसेस मांगते हैं, उनको समझा सकते हैं कि ये एविडेंस आज के नहीं है, ये हजारों साल पुराने एविडेंसेस हैं। और जिनको विश्वास नहीं होता है उनको ही बोल दोगे आप ये करके देखो, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो हम दूसरा एक्सपेरिमेंट किसी और पे नहीं करने वाले हैं, आप पे ही करेंगे। अगर आपको हजारों साल की हमारी पद्धतियों पे विश्वास नहीं है तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, आपको हक भी नहीं बनता है। तो ये 3 बी है जो योग को बनाती हैं। एक हमारा बॉडी को इंडिकेट करता है, दूसरा आपकी ब्रेन को, तीसरा ब्रेथ को। इनके अंग आपको पता है किस तरह से हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं। नेचुरली ये हमें रेगुलर प्रैक्टिस में लाने चाहिए, और लाते ही लाते हम अपने अंदर ऐसा बदलाव लाएंगे, आपको जो अचीव करना होगा इजिली अचीव कर पाएंगे। और अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहते हैं? आपके जो एम है, उद्देश्य है, वो मेटेरियलिस्टिक नहीं है कि सारी चीजें हमारे पास हों। नेचुरल सी बात है, मनी जो भी चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। लेकिन आप ये सोच लीजिए आपके पास सब कुछ है और क्या नहीं है, आपका हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? आप किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन, दोहन नहीं कर पाएंगे। आप ये देखेंगे एक पिक्चर है जिसमें तरह तरह के आसनास शो किए गए हैं। इन आसनास की प्रैक्टिस करिए, इन आसनास को जिए। जैसे कि स्थिर सुखम आसनम, तो जिस आसन में रह के आपको सुख मिलता है, उस आसन को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, 30 सेकंड के लिए धीरे धीरे बढ़ाइए। आपको लगता है कि आप वृक्ष आसन में बहुत देर तक रोक सकते हैं। वृक्ष आसन आपकी हड्डियां मजबूत नहीं कर रहा, आपकी मसल्स मजबूत नहीं कर रहा, ये तो ऑटोमेटिकली हो रही है। ये आपके अंदर एक ब्रेन के अंदर हार्मोनी ला रहा है, ब्रेन के अंदर बैलेंस ला रहा है। और जो आपका सेरिबेलम है वो स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है। सेरिब्रम के साथ साथ सेरिबेलम डेवलप हो रहा है। सेरिबेलम को छोटा दिमाग कहते हैं, जिसपे लोग बहुत कम ध्यान कर देते हैं, और ये तो बहुत जरूरी है। लोग उस पर ही ध्यान कम देते हैं, और ये जो है जो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमारी मदद करते हैं।
मुद्रास को बहुत अच्छे से समझ लीजिए और मुद्रा से ही चीजों को शुरुआत कीजिए। ये आपके कुछ जो हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में है, और इसके बारे में आप लोगों को बहुत पहले से ही पता है कि सोचो आप चंद्र वेदन प्राणायाम या सूर्य वेदन प्राणायाम, सिर्फ आप सांस को अगर रेगुलेट और कंट्रोल करते हो, आप बॉडी की एनर्जी, बॉडी की मेटाबॉलिज्म, बॉडी का टेम्परेचर ये रेगुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाहर से मेडिसिन नहीं चाहिए, इसके लिए बाहर से आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं चाहिए, फंड्स नहीं चाहिए, और जो फ्री होता है उसकी वैल्यू कम होती है। ये तो हमने अपने समाज में ही देखा है। माँ जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है, आपने देखा होगा कि उसको ही हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, या उतना ज्यादा उसका समाज में जो स्थान होना चाहिए वो आप बहुत सारे अभी एग्जाम्पल ऐसे मिले हैं। और हालांकि हमारी गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है इस तरह के, आपने देखा होगा जेल में भी लोगों को डाल दिया होगा जिन्होंने निरादर किया। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास टूल्स टेक्निक्स हैं खुद करना है, दूसरों को देना है। मेडिटेशन टूल्स टेक्निक्स बहुत आसान है, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ब्रेन के अंदर बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं। इसके अंदर थ्योरी क्या है, अगर हम थ्योरी की बात करें, हम परेशान क्यों हैं, रीजन क्या है परेशान होने का? सिर्फ एक ही रीजन है, जो हमारा ब्रेन है। वो क्या है? ब्रेन को वैसे मैं अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, वैसे तो आप इसको बना सकते हो, और मैं इसको एक मुट्ठी के माध्यम से भी बतानी। मुट्ठी है जैसे हाथ हम बंद करते हैं ना, ऐसे तो यही होता है। और यहाँ पे आपका जो हम लोग हिंड ब्रेन की बात कर रहे थे, सेरिबेलम, इसका लोकेशन है हिप्पोकैम्पस, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम यहाँ लेते हैं, ये आपका पोन्स हो जाता है। ये मेडुला ऑब्लांगेटा है जो बॉडी पे सारा कंट्रोल रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो बॉडी को कंट्रोल करती है, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस है, देन थैलामस, हिपोथैलेमस। ये आपका सेरिब्रम है जो पूरे बॉडी को, कॉग्निशन जो आपके हैं सबको, सब पे कंट्रोल करता है। डिसीजन मेकिंग में होता है ये सारी चीजें, जो आप इसको समझते हैं। अब होता है क्या है कि जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आपके अंदर इतने थॉट्स चल रहे हैं, और वो थॉट्स, कई थॉट्स तो ऐसे हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, एक पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपस में डिस्ट्रॉय करते हैं। वो अच्छी बात है। अल्टीमेटली क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल से जाता है वो आपका एवरेज ही जाता है, मतलब पॉजिटिव। ये कई सारे थॉट्स आ रहे हैं, इसमें एक जो अल्टीमेटली ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहाँ पे जाके केमिकल्स ही हैं। ये अगर आप बड़े आसानी से समझो तो ये कालिंदी कुंज है, और एक तरफ ये आपका फ्रंट है, आप एमिटी से जा रहे हो, दूसरी तरफ ये फ्रंट है आपका जो है, इधर ये कालिंदी कुंज की तरफ ये रिवर है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हालांकि पुल बन गया है, अगर पुल आप ना देखो तो यहाँ जाने के लिए बोट एक माध्यम है, ये केमिकल माध्यम है यहाँ से यहाँ मैसेज पहुंचाने के लिए। कई बार जब पुल बना है तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बोल देते हैं डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स बोल देते हैं। अगर ये थ्रू इसके जा रहा है तो उसको हम लोग केमिकल सिनेप्स बोल दे रहे हैं। ये दो वर्ड हैं जो जिसके थ्रू माध्यम से हमारे जो सिग्नल प्रोसेसिंग हो रहा है। अब ब्रेन के अंदर क्या है, इतने सारे थॉट्स का बम्बार्डमेंट है, इतने सारे थॉट्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है, और इतनी लेयर डीप तक थॉट्स चले जा रहे हैं। हमें क्या करना है, थ्रू एनी एक पॉइंट फोकस्ड, आप किसी माध्यम से फोकस ले सकते हो। चाहे वो आपका मंत्र हो सकता है, चाहे वो आपकी इमेज हो सकती है, चाहे आपका कुछ भी एक चीज हो सकता है, या एक इमेजिनरी आपका इवेंट इंसिडेंट हो सकता है जिसको बहुत अच्छा लगा, तो आप इंसिडेंट्स को आप याद करिए, आंखें बंद रखिए, और जब आप उस इंसिडेंट्स को याद करते हैं तो आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका जो वो थॉट है जिसकी तरफ आप अटैच होना चाहते हो, जो थॉट्स आपका बहुत डीप है, अगर आप कहें तो वो यहाँ पे है। और जब आप इस थॉट्स की तरफ जा रहे हो तो बीच में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आप वापस निकल जा रहे हो। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ तक जा ही नहीं पा रहे। अब आप क्या करना है, इस पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम कहते हैं होल्ड करना, तो ये मेडिटेशन नहीं हुआ। मेडिटेशन तो होल्ड नहीं है ना, फोकस नहीं है। बट अल्टीमेटली हमें एक माध्यम चाहिए
वहां तक पहुंचने के लिए। तो माध्यम क्या हुआ, यहाँ पे एक एक हैंगर जिसको बोलते हैं ना, एक हैंगर जिसको हम टैग, जिससे हम अपने आप को हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं, टैग करने की कोशिश कर रहे हैं, या माइंड को या विचार को उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही दूसरे विचार आएंगे तो आपका यहाँ से ध्यान हट जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी यहाँ रहेगा कभी नहीं रहेगा, चलता रहेगा, चलने दीजिए। बट आप क्या करें, फिर वहीं पे लाएं उसी जगह पे, जो आपको मंत्र हो या फिर जो आपकी ऑब्जेक्ट हो या आपका इवेंट हो, फिर कोशिश करें। तो ये बार बार हमें कोशिश करना है। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जब आप बहुत टाइम पे क्या होगा, जैसे आप क्या करना है, मेडिटेशन, अच्छा मंत्र लिया और आप सीधे यहाँ पे पहुंचोगे। धीरे धीरे ये जो है, ये डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाएगा। और बिलीव मी, आपकी क्लैरिटी इतनी रहेगी जब आप वापस करें। अगर ये चीज आप डल डल कर लिया आपने, तो जो आपका एफिशिएंसी है, जो आपको कार्य करने हैं, जिसको करने के लिए घंटों लगते हैं, वो क्या होंगे, मिनट्स ही लगेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप जितनी करते रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपके अंदर बदलाव दिखेंगे। और विश्व को एक परिवार के माध्यम से अगर देखने लगे तो ये साइको सोशल ड्रामा है दिमाग के अंदर, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसको करने के लिए ये नहीं है कि योग करना है तो हमें मैट चाहिए, मैट चाहिए तो हमें अलग जगह चाहिए, हमें प्लेस चाहिए, और वो कभी हो नहीं पाता। वो नहीं पाता तो हम योग नहीं कर पाते हैं। वो नहीं चाहिए। योग करने का मतलब एक्सरसाइज ही नहीं है, मेडिटेशन भी है। और आप इसको बड़े आसानी से एक जगह पे बैठ के भी कर सकते हैं, और ये आपके अंदर बॉडी में ऐसे हार्मोनल ऐसे चेंजेस लाएगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। और आपका जो बिहेवियर है, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। एक कोशिश करिए, मैं जिससे आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं उसको सिर्फ मैसेज भेज दीजिए, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, या आप फोन पे बात कर लीजिए। आप देखोगे कितने ज्यादा आप रिलीव हो जाओगे। बिलीव मी दैट, आपकी कम से कम 10% अगर खुशी ना बढ़ जाए तो मुझे आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोग एक दूसरे से और समाज से, देश से एक पॉजिटिव रिएक्शन के साथ इंटरेक्ट करें, और देश को पॉजिटिव बदलाव के लिए ले जाएं, और इस धरा को फिर से हम वसुंधरा, बहुत सुंदर पृथ्वी, बहुत सुंदर सर्वदायिनी बनाए, यही मेरी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much for a wonderful, excellent session. I think you have very well explained the pharmacology of yoga, and I think all the students have taken benefit from this. So, hope everyone has enjoyed. And dear participants, you are invited for the questions. And over to you, Dr. Vinamra Sharma, and Dr. Neha Namaste, Kathuria is sir. also here with us. Namaste, sir. Dhoni ji is also with her. Indu ma'am is also with us. So kindly share your views. Over to you, ma'am. Yes. Sir, I really enjoyed it, and it is a different way you have described the actually the meditation and the yogic concepts, and your PPT is really amazing. बहुत ही मतलब the way you have described it कि and the especially the way you are speaking, it is very very nice. मतलब वो सीधा हिट करता है माइंड को कि आपने जैसे एक्सप्लेन किया है ना, वो बहुत अच्छे से आप ग्रास्प कर सकते हो. सो मैंने तो बहुत सारी नई चीजें सीखी आज. So it was amazing session, sir. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. Sir was the backbone of this department, we can say. अच्छा. He Oh, was that's with very us nice. previously, Amity थैंक Institute यू, बहुत बहुत धन्यवाद in the मैम। system of medicine. Thank you, sir. Thank you so much. Ma'am, sir is not a watch. Sir is at present also the backbone of Yes, the yes, document. presently also. I cannot say With lot that of fast. efforts for us. Always serve in your service, always. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Badoni ji, are you here? Indu ma'am. Okay. नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते बदोनी जी। नमस्ते मैम। थैंक यू सर, आपका बहुत ही सुंदर लेक्चर था जो मेडिटेशन एंड योग के ऊपर, और जो आपने कहा है समत्व योग उच्यते, यानी कि हर परिस्थिति में जो समभाव में रहना चाहिए वो सभी के लिए। और आजकल जो ऐसा माहौल बना हुआ है स्ट्रेस का, तो उसी परिस्थिति में भी समभाव रहना बहुत आवश्यक है, और जो वो केवल
आप ध्यान के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन सर का बहुत अच्छा सा आपने जो बताया है कि ध्यान को किस तरीके से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आपने योग के रिगार्डिंग बताई हैं, तो बहुत सुंदर और अच्छा आपका जो व्याख्यान था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, Vidonichi. Thank you so much. Bhavna Anand, she's mentioning that it's always a treat to mind or to have overlook specifically on your visionary towards fear. Thank you so much, sir. So the students are complimenting you, sir. And Indu ma'am, are you here? Indu ma'am is writing wonderful presentation, very motivating. Thank you. Over to you, sir. Vinamra sir, over to you. Thank you once again, ma'am. Sir has presented very well. Means from the starting and from the end until end. Means how that sir is on that session, and with that interaction and with that some research insights, which is create some that means we can say the motivation for among the students, because they have to, because we means the students are from the various fields, some of that science, some of the art, some of the commerce. So actually they have to understand that what that new generation wants. So session on sir has started the session very wonderfully. Whatever the teaching aids sir used, means by that drawing the pictures and by the reactions between the how that means that hormone secretion, their functions are taking place in the context of the meditation, how the melatonin works, how the other hormones work, is very wonderful. Really, it's means everything we can say will give that 101% mark, means for the student point of view, because this workshop is basically for the students only, for the value added courses point of view. So that's why students can understand that how that they can benefit it. But research aspect of the yogic science, this is of course this is ancient wisdom. We cannot leave that our basics and principle, but how we can move forward with the use of some tools and technology in the current perspectives. So really it's very wonderful. And as per that comments by the audience and attendees, it looks that everyone is appreciated. And really, sir, heartedly with the heart, I can congratulate you, and that thank you very much, sir. Yeah, Pawan Khatana is mentioning like it's a bridge between ancient science and modern science. So wonderful session by the sir. So Pawan is mentioning you, Dr. Rajput sir. You are Really, on mute. ma'am. Dr. Pawan sir is means really, sir. Please want to say something, please, sir. Yeah, Pawan is with us. Thank you. Good morning, Thank you, Pawan. Vinamji. गुड मॉर्निंग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। Open your camera, Dr. Pawan. कैमरा Okay. कहाँ Please से accept the request, sir. Yeah. So over to you, Pawan, Dr. Pawan sir. Over to you. मैम आप लोगों का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, और जो आने वाले योग के छात्र हैं पेशे में प्रोफेशन, उन लोगों के मन में साइंस के प्रति एक झुकाव और योगा में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लाने में बहुत मील का पत्थर साबित होगा सर के सेशंस। आप लोगों के जो एफर्ट्स हैं, अमेठी इंस्टीट्यूट का, गुरुकुल का जो निरंतर लगातार प्रयास जिस दिशा में चला है, वो काबिल तारीफ है सर। Thank you, Dr. Pawan. Thank you so much. We expect some comments from the Saksham Batra and the Shivi Vardwa. These are the students in the panel. Saksham and Shivi, just open your cameras. Say few. Yes, Saksham. Please, beta. Over to you. Yeah, session काफी अच्छा था. The session was really good. I think it is. I am more interested when both the scientific aspect and the ancient aspect are mixed together and then talked about. I really enjoy when that happens. So yeah, it was very good. A lot of new things to learn. And thank you, Sitendra sir, for a wonderful session. Thank you, Saksham, for the nice comment. And I think we can see in the picture, sir is far means busy, and sir is giving their valuable and precious time for us for the means value-added compliments
for this sessions. Really, sir, we are thankful from that our university and from that core of the institute. We are thankful to you, ma'am. Swati, ma'am. Yeah. Ratu, Thank sir, you all quickly the in final participants. comments for the Sorry? students. I think, Yes, sir. sir. Yes, No, sir. ma'am, Sir is requesting busy. the sir for the final comments. I think sir Yeah. is busy somewhere. So I Ma'am, over to you. request all the participants to be present at 3 o'clock. So 3 to 5 again, 3 to 4 Anil Aryaji will be with us from Moraji Desai National Institute of Yoga, and 4 to 5 our own Dr. Vinamra Sharma sir will be there from AISM department. So I request everyone to be present again by 3 to 5, and I request for the final comments by Dr. Rajput sir. Your final comment, and then thank you so much. Okay, you are on Thank you, muted. आप mute पे हैं? I think he is busy. Okay, thank you all the participants. Thank you everyone. Thank you. God bless you all. Be safe and healthy. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Namaste, sir. Thank you so much.